Okay, so today we are going to start with numericals and related to work power energy. Let's start with first numerical, and that is a raindrop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of drop, then the work done by the resistive force is. So, how do you solve this question? You have a raindrop which is falling from a height of 1 kilometer. Let's say 1 kilometer height है ये. Final speed of the drop is 50 meter per second. Mass of the drop is 1 gram. Resistive force is proportional to the speed of drop. So there is resistance due to air which is proportional to the speed of drop. Then the work done by the resistive force will be. How do you solve this question? Change in potential energy, and that's it. Kinetic energy what? Velocity दिया हुआ है. Then what? Work energy theorem. The drop was at rest. Initial kinetic energy 0. Then it falls. मतलब it is gaining kinetic energy. मतलब velocity मतलब kinetic energy. Okay. Then how do you write down this change in kinetic energy? Why the object is gaining kinetic energy? Due to work done on it because of gravity, and there will be what? Will there be resistance due to air? So total change in kinetic energy is work done due to gravity by the gravitational force and plus work done resistive forces. हमको क्या फाइंड करना है? Work done by the resistive force will be change in kinetic energy minus work done against gravity. What will be change in kinetic energy? Final minus initial. Final is half mv square minus initial is 0 because it was initially at rest. Work done against gravity or by gravity mgh. So work done by resistive forces is half. Mass is 1 gram मतलब 10 power minus 3 kilogram. V square मतलब 50 square minus mass is how much? 1 gram. 10 minus 3 into g की वैल्यू 10 ले लेते हैं. For example, they have not said to take g value of g as 10. कौन सा? mgh आएगा ना. पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही आएगा ना. Potential energy is mgh. तो g की वैल्यू 10 और 1 किलोमीटर इज हाउ मच? 10 पावर 3 मीटर. तो ये और ये कैंसल. तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस दिस इज 2500 और 10 पावर माइनस 3 मतलब 2.5 बाय 2 minus 10. 1.25 minus 10, that is minus 8.75 joule. Correct? Easy? Okay, so if potential energy, m मास कितना है? 1 ग्राम. 1 ग्राम मतलब कितना? 10 पावर माइनस 3. g की वैल्यू 10. करेक्ट. एंड देन यू हैव वैल्यू ऑफ h as 1 किलोमीटर. नहीं, नो, दैट इज 1 ग्राम. That is 1 gram. Okay, clear? Right? Okay, next. A body constrained to move along y-axis is subjected to a constant force F bar. So body is constrained to move along y-axis and it is subjected to a constant force F bar which is given by
minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. The work done by this force in moving the body through a distance of 4 meter along y-axis is. How do you find out this work done by a force to move along y-axis by a distance of 4 meter? What is work done? Force dot displacement, right? What is displacement? 4 meter, but along which direction? तो 4j cap m. तो easy है ये, oral question था. So it is like minus I cap plus 2j cap plus 3k cap dot 4j cap. हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ j cap डॉट j cap सर्वाइव करेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. तो ये आएगा 8 जूल ऑफ वर्क इज डन. Questions are easy in work for energy. Two bodies A and B have masses 20 kilogram and 5 kilogram respectively. Each one is acted upon by a force of 4 kgWt. दो बॉडीज है 20 और 5 किलोग्राम, दोनों के ऊपर 4 kgWt का वेट मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है. If they acquire the same kinetic energy in times Ta and Tb, then the ratio of Ta and Tb is. So they acquire same kinetic energy, मतलब kinetic energy of A equal to kinetic energy of B, which means half m A Va square equal to half m B Vb square. Correct. What is do you know what is velocity in terms of acceleration and time? Acceleration into time. But what you know is v is equal to at if u is 0. तो आप लिखोगे हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे. ma va is acceleration of a into ta का स्क्वायर इक्वल टू mb acceleration of b into tb का square. Right, then what next you will do? Do you know accelerations? What is acceleration of A? Force on A upon mass of A. So I will just substitute these things in the equation. So mass of A, force upon mass of A, Ta square is equal to mb force on B upon mass of B, Tb square. Force एनीवेज इज सेम, तो कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से. तो ये आएगा ma अपॉन ma स्क्वायर ta स्क्वायर इक्वल टू mb अपॉन mb स्क्वायर इंटू tb स्क्वायर. तो ma mb कैंसल आउट. तो ta अपॉन tb का स्क्वायर मैं डाल लेता हूँ रूट, मतलब ma अपॉन mb का रूट. What is ma? 20 by 5. 4 का रूट कितना? 2. तो रेशियो इज 2. Right? So this is how you have to solve such questions. Right? Was there a shortcut? Does there a shortcut? हो सकता है. कैसे हो सकता है? Is like this. Kinetic energy K is half mv square. Kinetic energy K is half m at square. Kinetic energy K is half m. A is force by mass into t square बराबर 2 into t whole square. तो K is equal to half m by m square f into t square, f square into t square. Then you can write down kinetic energy as half 1 by m f square t square. Now you can say K constant है, f constant है, 2 constant है, तो t square is proportional to m. So t is proportional to root of m.
So TA upon TB is root of MA by MB. More or less same number of steps are involved, but this is one way of solving it. पहले एक टाइम और मास में रिलेशन बना लो and then you can just take the ratio. Clear? An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 keV. So इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. केईवी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यू शुड नो दिस. एंड द सेकेंड विथ 100 केईवी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज, ये इजी है because I will just take the ratio of kinetic energy of electron to that of proton. That turns out to be 10 by 100, क्योंकि दोनों किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by 10 आएगा. What is kinetic energy in terms of mass and velocity? MEV square upon MPVP square equal to 1 by 10, right? What we are supposed to find is ratio of speeds of electron to that of proton. So it will be mp upon 10 times of me. So ve by vp is equal to under root of mp by 10 times of me. Option number B. Option number B. The work power energy is basically very simple to solve. A 30-meter deep well is having water up to 15 meter. An engine evacuates it in 1 hour. The power of the engine if the diameter of the well is. हमारे पास एक well है which is 30 meter in depth, which is half filled, मतलब 15 मीटर तक filled है. इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 4 मीटर है. The engine which evacuates, मतलब पूरा का पूरा वेल खाली करने के लिए हाफ आवर लगा. So power of the engine is what? How do you calculate power of the engine? Work done per unit time. What will be work done in this case? Change in potential energy. क्यों? एक जगह से दूसरी जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो क्या चेंज होता है? पोटेंशियल एनर्जी. सो इट विल बी mgh by t. t पता है? यस. h पता है? पता है h. What is h? How much is h? h1 लेंगे या h2 लेंगे? This is h2, मतलब मैं इसको h2 बोल रहा हूं, यहां से यहां तक जो हाइट है उसको. तो इन सच केसेस जब आपके पास एक वेल है और आधा भरा हुआ है, तो इन सच केसेस h इज टेकन टू बी एवरेज ऑफ द टू. क्यों? क्योंकि जब मैं पानी को बाहर निकालूंगा तो मैं बॉटम से भी निकालूंगा, मैं उसके ऊपर तक से भी निकालूंगा, यहाँ से भी निकालूंगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम बॉटम एंड वी आर गोइंग टू ड्रेन इट ओवर हियर ऑन द ग्राउंड. तो बॉटम से लेके ग्राउंड तक और 15 मीटर से लेके भी ग्राउंड तक जाएगा वो.
तो इन सच केसेस H is taken to be average. तो ये पता होना चाहिए mg H1 plus H2 by 2 into T upon T मतलब. Now the question is, how do you find out mass of water? Mass of water. What is the mass of water in a sphere with radius r? मतलब क्या करते हो? अपॉन नहीं. तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये m आ गया आपका इनटू g h1 plus h2 by 2 times of t. What is volume of cylindrical vessel? Cylindrical vessel, यहाँ देखो, cylindrical vessel. 2 by r plus. You are telling me surface area, volume. How do you find out volume? What is volume of this room? Right. मतलब पूरा पूरा ये स्पेस फिल होना चाहिए. करेक्ट. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 by 3 pi r cube. मेरे पास एक ग्लास है, सिलेंडर है मतलब, उसकी हाइट को अगर मैंने उसके क्रॉस सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम मिल जाएगा. एक डिस्क है, डिस्क को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ लेंथ L से, तो डिस्क ने टोटल वॉल्यूम कितना कवर किया? एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज एरिया ऑफ द वेल इनटू लेंथ ऑफ वाटर इन दिस केस, क्योंकि मास ऑफ वाटर चाहिए, एयर नहीं चाहिए हमको. बराबर. करेक्ट. ये आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू h1 प्लस h2 by 2t. मैं इंटेंशनली फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, अदरवाइज हम इंडिविजुअली m फाइंड कर सकते हैं, g फाइंड कर सकते हैं, h फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ इट कम्स. एरिया इज पाई r स्क्वायर एंड r is 4 meter, तो d is 4 meter, तो रेडियस is 2 meter. तो पाई into 2 square into h is 15 into what is density of water? 1000 kilogram per meter cube. 1 is gram per centimeter cube. What is g? 10. h1 plus h2 कितना है? 30 plus 15 कितना है? 45 divided by 2. टाइम कितना लगा था? हाफ एन आवर. राइट. टाइम कितना लगा है हमको? हाफ एन आवर. 1 आवर बोला है क्या? 1 आवर. टाइम इज 1 आवर. राइट. ओके. सो ये एक 2, ये एक 2 तो कैंसिल ही हो गया. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. what you should be doing is get rid of power of 10s first. 10 power 3 power 1 10 power 4 15 to the 30 है ना. तो ये 10 power 4 आ गया, ये 15 to the 30 आ गया. 45 सीधा पता होना चाहिए, 135 होता है. तो 1350 बराबर इंटू पाई इंटू 10 पावर 4. ये वैट्स में आएगा. 1350 इंटू पाई. पाई इज रफली 3.14 रफली. तो 135 इंटू 3 करोगे तो 135 इंटू 3 करोगे तो 35 प्लस 35 प्लस 35 कितना? 105. और 100 इंटू 3 300 प्लस 105 रफली बोल रहा हूं मैं, 400 समथिंग आएगा. दिस इज गोइंग टू बी 400 something. Okay, so there is, we don't get that answer here. Why? What has been wrong? क्या गलत हो गया? I know कि गलत होने वाला था. क्या गलत हो गया? नहीं. ओके. एरिया आपने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर. बराबर. आर का यूनिट क्या था? मीटर. बराबर. h1 मतलब द पॉइंट अप टू विच वाटर इज फिल्ड 15 मीटर. जी की वैल्यू भले ही आपने 10 ली है, 9.8 होती है रियलिटी में, मीटर. रो की वैल्यू आपने लिया 10 पावर 3 मीटर
kilogram per meter cube. H1 H2 30 plus 15 meter time 1 hour, right? So this is how you need to see what is going wrong. So what went wrong was here. This was supposed to be 60 minutes into 60 seconds. ओके तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है दैट यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. तो अगर ध्यान रहेगा तो यू विल नो दिस इज 1 4 I will just take out 0 0 off from here because I know this is 15 3 this is 2 so what I know is this 2 and this 2 will also cancel out. So ultimately what I am getting is 15 by 4 into pi into 10 power 3 और 10 power 3 किलो में एडजस्ट होने वाला है, ये वैट्स में है. 15 by 4 into pi. ठीक है, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो कर लो. 15 by 2 is 7.5, उसका हाफ 3.75. 3.75 into pi which is again 3.15. 3.75 into 3.15 is greater than 10, is in fact greater than 11. Is there something greater than 11? Yes, kilowatt, of course. So 11.55 kilowatt, correct? Calculation समझ में आए? So this is how you should be doing, and you should also remember that while doing calculations you need to be pretty sure that all the parameters are in SI units, नहीं तो गलत होगा. फॉर्मूला कैसे बनाया समझ में आया? Power is work done upon time, but work done in this case will be changing potential energy because you are draining out water from a well, you are taking water out, so mgh. The problem is with h, 30 मीटर का वेल है, उसमें 15 मीटर तक ही पानी भरा हुआ है. तो आप क्या करोगे कि बॉटम, सबसे बॉटम से भी पानी ऊपर लाओगे, 15 मीटर से भी ऊपर लाओगे. तो इन सच केसेस हाइट इज टेकन टू बी एवरेज ऑफ बोथ. तो h1 plus h2 by 2, तो 22.5 आता है, वो मैंने by 2 नीचे एडजस्ट कर लिया है. And that's it. You want to write? Okay. Next question. A spherical ball of mass 4 kilogram moving along a straight line strikes another spherical ball of mass 1 kg at rest. Okay. After the collision, A and B move with velocities v1 and v2 meter per second respectively, making angle of 30 and 60 degree with respect to original direction of motion of A. The ratio of A v1 by v2 will be, मतलब in this case what you have is a body, let us say ball B which is at rest. At rest है, initial velocity 0 है, मतलब initial velocity 0 है. Okay, then there's a ball A which is coming and hitting, and after collision ball A and ball B are moving such that ball A, let us say, makes an angle of 30 and ball B makes an angle of 60 degree with respect to original direction. Original direction of ball A ये था, so with respect to that direction 30 and 60. Velocity of ball A is v1 and ball B is v2. So in such cases how do you solve questions is, क्या करते हैं हम collision में, कैसे solve करते हैं? Linear momentum conservation. तो हमको ये देखना है कि first of all we will apply conservation of linear momentum in which direction? In the direction, original direction of motion या फिर perpendicular to the direction of motion? कहाँ apply करोगे? I will apply conservation of momentum
in this direction perpendicular to the original direction of motion q, क्योंकि इनिशियल मोशन किसका था, सिर्फ ए का, कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं अगर लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सॉल्व तो इससे भी होगा, बट इनिशियल मोमेंटम जब आप लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, m1 u MAUA इक्वल टू, क्योंकि b तो जीरो है ना, रेस्ट पे था इनिशियली, MAVB, सिर्फ VB नहीं, ये VA और VB का, VA और VB का MAVA, लेकिन कंपोनेंट अलोंग x देखना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी का, cos of theta, तो cos of 30। Similarly, MBVB cos of 60, correct, okay। A spherical ball A of mass 4 kg moving along a straight line, ऐसा सब लिखा है, कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, मतलब you cannot solve it by this way, so because you don't know what is the initial velocity of ऑब्जेक्ट ए, इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलेंगे अप्लाइंग conservation of linear momentum along y axis, right? So when you apply conservation of linear momentum along y axis, initial is equal to final. Initial along y axis was 0 plus 0 because none of the object was moving along y direction initially. Neither object A or B तो मूव ही नहीं हो रहा था, clear, right? So final momentum of A 30 डिग्री पे है, तो ये कंपोनेंट हो गया उसका MAVA cos और y कंपोनेंट हो गया उसका साइन। तो पहले ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया MAVA साइन 30 और दूसरे का हो गया MBVB साइन 60, करेक्ट। यहां तक क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या नहीं, सही है क्या, नहीं, क्यों सही नहीं है, why, because y component of final velocity of B is in negative direction, और A के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है because the components are both in the positive direction, clear, good। तो आप लिखोगे MAVA sin 30 equal to MBVB sin 30 sin 60, spherical ball of mass 4 है ना, moves with in a straight line and collides with ball B of mass 1, इसका 4 है, इसको V1 बोला है, sin 30 हाफ है, इसका 1 है, V2 बोला है, sin 60 √3/2 है। तो V1 में V2 कितना आएगा, V1 में V2 कितना आएगा, 2 कैंसिल, V1 में V2 कितना आएगा, √3/4 राइट। तो ऑलवेज पे अटेंशन टू द डायरेक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स, तब जाके आंसर आएगा आपका करेक्ट, राइट। तो दिस इज सिंपल थिंग,
You just need to pay attention to the directions of components. अगर वहाँ पे प्लस लिखते तो आंसर में माइनस आता, अगर मैं आंसर में एक भी ऑप्शन माइनस √3/4 लिख देता तो देन विल बी अ प्रॉब्लम. वैसे वेलोसिटीज का रेशियो नेगेटिव नहीं आ सकता. नहीं आ सकता है बट ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा मोशन का. यू वांट टू राइट? हो गया. A body of mass 0.5 kilogram travels in a straight line with a velocity of a x raised to 3 by 2, where a is 5 meter raised to minus half second raised to minus half. The work done by the net force during its displacement from 0 to s. Work done by the net force. How do you find out work done by the net force? कैसे फाइंड करोगे? फ्रॉम 0 to 2 इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम 0 to 2 और velocity is a function of distance, मतलब it is a case of variable force. क्यों variable force? अगर force constant होता right, तो there will not be variation in ऐसा नहीं है. कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटी भी होता है. मैंने अगर एक बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है. करेक्ट. सो कांस्टेंट फोर्स मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस व्हाट इन टर्म्स ऑफ v? a is constant, मतलब dv/dt is constant. मतलब क्या? velocity is changing equally in equal intervals of time. correct? right. okay. यहाँ पे v is a function of x, it's not a function of time. इसका मतलब with distance velocity is changing, मतलब the force will also be a function of distance, not time. तो ठीक है, हम प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? How do you find this? You know what is acceleration? dv/dt. But v is not a function of t, but v is a function of x. तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं और एक चेन रूल अप्लाई कर देता हूं. What is dx/dt? Velocity v और dv/dx. Correct. तो acceleration will be v dx of v which is a. कंफ्यूजन क्या होता है? ये भी a, ये भी a. वो a कांस्टेंट है तो उसको मैं बोल देता हूं k, just to avoid any kind of confusion. correct? okay. k v raised to 3/2, मतलब एक्सेलरेशन इज v, k इज कांस्टेंट है ना. x raised to 3/2. what is derivative of x raised to 3/2 with respect to x? 3/2 x raised to 3/2 minus 1. v k 3/2. what is x raised to 3/2 minus 1? x raised to half. x raised to half. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. बट आई कैन स्टिल कंप्लीट दिस. कैसे? 3/2. what is v? is k x raised to 3/2 और एक k है और x raised to half है. राइट. तो a इज इक्वल टू क्या करेंगे? 3/2 k इंटू k, k स्क्वायर.
x raised to 3/2 plus 1/2 is x square. ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन. करेक्ट. व्हाट इज फोर्स मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन? मतलब 3/2 m k स्क्वायर x स्क्वायर. मैंने बताया था फोर्स विल बी अ फंक्शन ऑफ x. आ गया फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x. गुड. नाउ यू कैन यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. वर्क डन. और वैसे भी हमको x क्यों चाहिए था? क्यों चाहिए था? बिकॉज वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स. कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट? 0 से 2 तक. व्हाट इज एफ? अभी आपने निकाला 3/2 m k स्क्वायर x स्क्वायर dx 0 to 2. So work done equal to 3/2 constant m constant k भी constant x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर dx 0 to 2 मतलब 3/2 m k square. What is integration of x square? X cube by 3 between 0 to 2. So what will be work done? 3/2 m k square upper limit minus lower limit. Okay, 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 है, मैं कर देता हूँ उसको आखिरी में. 3 into 3/2 m k square into 8/3. 3 3 cancel, 1 za 4 za 4 m k square. What is value of mass? 0.5. 4 into 0.5 is 2 into a k की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो 5 स्क्वायर. 4 का हाफ into 25 50 जूल. 50 जूल. करेक्ट. तो क्या किया हमने v के इक्वेशन से a निकाला, a से f फाइंड किया और फिर वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू f dx and thus by solving integration you finally get 50 joule as the final answer. Any doubt here? Yes, no? So we can go ahead. ये भी उसी टाइप का है. A position dependent force F bar acts on a small object of mass 2 kg to displace it from 0 to 5. The work done is. क्या करोगे यहाँ पे? ये तो इजी है. This is easy, simple. Extremely simple. क्या करोगे? दो तरीके से हो सकता है. एक, चलो क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने फोर्स को वेक्टर तो दिखाया बट बाद में वो उसके आई एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखना भूल गए तो मैं इसको स्केलर ही बना लेता हूँ. फिर तो इजी है. फिर तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 5 एंड एफ इज 7 minus 2x plus 3x square between 0 to 5 dx. So work done W is 7 dx का इंटीग्रेशन करेंगे. मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए लिमिट्स, क्योंकि सब पे सेम लिमिट्स आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा तो मैं पहले ही बाहर ले देता हूँ. 7 कांस्टेंट था उसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन ओवर dx, ये पहला टर्म हो गया. -2 कांस्टेंट था बाहर रखा, x dx, ये दूसरा टर्म हो गया. +3 कांस्टेंट था बाहर रखा, x स्क्वायर dx, ये तीसरा टर्म हो गया. तो work done W will be equal to 7x minus 2x square by 2 plus 3x cube by 3 0 to 5. Cancel, 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 cancel. W is equal to 7x minus x square plus x cube. Upper limit minus lower limit. 7 into 5 minus 5 square plus 5 cube minus 0 0 0.
35 minus 25 plus 125 कितना होता है? 35 minus 25 plus 125 135. Clear? A body of mass 10 kilogram at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is. Easy question है. हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक साथ दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं एट राइट एंगल्स. एक 4 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी हाइपोटेन्यूस बेसिकली. सो रिजल्टेंट फोर्स मैं आर से नहीं, मैं एफ से डिनोट करता हूँ, बेटर रहेगा. रिजल्टेंट फोर्स एफ आर. व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स एफ आर? व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर? हाँ, बट अंडर रूट ऑफ 1 square plus 3 square. 16 plus 9 25 root 5. करेक्ट. फोर्स है, मास है और टाइम है. फोर्स, मास, टाइम. आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय द वे? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है ना आपको, राइट? हाउ डू यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी हियर? व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन. बराबर. ओके. What is work done? Force into displacement. What is displacement for a body if it starts from rest? S equal to ut plus 1/2 at square में u की वैल्यू, हाँ, मतलब f into half at square because u is 0. What is acceleration of a body? F half f by m. F equal to ma. A is equal to f by m t square. तो ये आ गया k हाफ एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम. हाफ एफ कितना 5 स्क्वायर, टी कितना 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर, मास कितना 10, एक 10 कैंसल, 1 जा 5 जा 5 क्यूब इज 125 जूल. करेक्ट. इतना नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि ये वर्क डन है, ये है, वो है, जरूरत नहीं पड़ती है इसकी. बताता हूँ. मेथड नंबर 2 लिखते हैं. वाह. Method 2 was also similar with only one difference. That is, what is kinetic energy? Half mv square. What is v? U plus at. What is u? 0. तो m, तो ये आ गया हाफ m f by m, बराबर है ना? f by m t स्क्वायर, बराबर. यस और नो? नहीं ना. v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर होता है क्या? एग्जैक्टली. कहाँ गड़बड़ हो सकती है वो सारे सोर्सेस देखना. ओके. हाफ m. नाउ इट इज correct because I will be writing down f by m into t inside bracket. इसको सॉल्व करने के बाद you will be back again here. So why should I be writing work done? Kinetic energy is work done. Work done is force under displacement. डायरेक्ट कर सकते थे. Method 2 is simple because you just need to
पुट v इक्वल टू at एंड सॉल्व और af by m होता है, आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला सेम बना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू पे अटेंशन, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is. करो तो solve. So you need to understand that when you yourself solve question, तो सब difficult लगता है because we are not thinking in the proper direction. Proper direction is this, mass है, already move हो रहा है, मोमेंटम भी दिया हुआ है, मतलब इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मैंने उस पर एक फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोमेंटम विल इंक्रीज, राइट। और हमको बताया है कि कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया दिया है। डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज इम्पल्स? व्हाट वाज इम्पल्स? The impulse was delta p, which was p2 minus p1, which was force into t. तो मुझे इनिशियल मोमेंटम तो दिया ही हुआ है, मुझे यहां से फाइनल भी मिल जाएगा ना, करेक्ट। p1 कितना 10, फोर्स कितना 0.2, कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए, कितना हो गया ये 12 टोटल, बराबर। तो ये आ गया 12 kg मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। हमको क्या पूछा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इंक्रीज, क्योंकि फाइनल ज्यादा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाया है। व्हाट इज पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम, तो p2 स्क्वायर बाय ट्वाइस एम माइनस p1 स्क्वायर बाय ट्वाइस एम, तो 1 बाय ट्वाइस एम, p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 इंटू 5, and p2 is 12, 12 square is 144, p1 is this 100, बराबर 44 by 10, 4.4 जूल, करेक्ट। नहीं यही है सेकंड मेथड, मतलब घूम फिर के तो यही करना पड़ेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दी होती है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दी होती है इंस्टेड ऑफ मोमेंटम, निकाल सकते हो वैसे आप निकाल सकते हो वो, आप बोल सकते हो एम वी वन इज इक्वल टू 10, फिर v1 इज इक्वल टू 10 अपॉन m, मतलब 2, फिर आप देखोगे व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे फाइनल वेलोसिटी, ये जो v1 है ये इनिशियल है, फाइनल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, v इक्वल टू v2 इक्वल टू v1, v इक्वल टू u प्लस at, v2 इक्वल टू v1 प्लस a इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 0.2, मास है 5, इंटू टाइम है, राइट। तो v1 v2 मिल गया, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, फाइनल हाफ m v2 स्क्वायर, तो दोनों को सब ट्रैक कर दो, आंसर वही आएगा। पर ये इजी है ना, इजी बिकॉज यू ऑलरेडी नो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल निकाल सकते हो, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपको पता होता है। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, द अदर वे अभी मैंने बताया ओरली, सो यू कैन सॉल्व वाया बोथ मेथड्स, ओके। तो A bus can be stopped, मतलब stopping distance की बात होगी यहाँ पे, by applying a retarding force F when it is moving with a speed V on a level road. The distance covered by it before coming to rest is S, मतलब stopping distance. If the load of the bus increases by 50% because of passenger for the same speed and same retarding force, the distance covered by the bus, ये भी हमने करके रखा हुआ है। अगर आपको याद होगा, यस अगर आपको याद होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s बोल दो, s was proportional to mv स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा था। फिर बाद में हमने बोला था x इज इक्वल टू x1 इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन x2
m2 v2 square, something like this we have done, right? अगर याद होगा तो तो अगर ये याद नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है, रिटार्डिंग फोर्स F, है ना, और गाड़ी को क्या करना है, रोकना है, बराबर। तो रिटार्डिंग फोर्स F into displacement S is equal to what, because this is the distance covered, stopping distance है ना, is equal to what, हाँ, तो work done is what, change in kinetic energy, this is work done, क्योंकि गाड़ी को रोकना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, बट दैट वर्क डन विल bring the kinetic energy from some value to zero, so that is equal to kinetic energy, ऐसा भी चलेगा। we were concerned with distance s, kinetic energy by force F, right? तो वापस फिर वही है इसमें, you need to substitute what is kinetic energy, half mv square, what is F, ma, बराबर, correct, cancel, cancel, what is a, total force upon mass in terms of velocity and other things, नहीं है पता, इसलिए फिर ये चीज होती है, हाँ, dv by dt, ठीक है, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, फिर अब मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं ले जा सकता, मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहीं पे हाफ mv स्क्वायर अपॉन फोर्स, ठीक है, क्या क्या कांस्टेंट है, सेम स्पीड, सेम रिटार्डिंग फोर्स, मतलब v और f कांस्टेंट्स है, तो s is proportional to m, why, since v and f both are constants, ठीक है यहाँ तक। फिर मैं बोलूंगा S2 by S1 is equal to M2 by M1, क्या फाइंड करना है, क्या बोला उन्होंने, लोड 50% से बढ़ा दिया है ना, मतलब M2 is M1 plus 50% of M1, पहले 100 था, मान लो पहले 1000 किलो वेट था बस के ऊपर, अब 50% से बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, पहले 1000 था, अभी 1500, मतलब M1 plus 50% of M1, what is 50% of M1, 0.5 M1 अपॉन M1, तो S2 कितना आएगा, 1 plus 0.5 is 1.5 M1 upon M1 into S1, M1 M1 cancel, तो S2 is just 1.5 times of S1 and S1 is S, बोला इन्होंने S, खत्म, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। What happens if I increase the load by 100%? Twice of S, right, good, वेरी गुड, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे सब डरते हैं, उस पर क्वेश्चन है, two identical cylindrical vessels with their bases at the same level each contain a liquid of density D. The height of liquid in one vessel is H1 and in the other vessel is H2. The area of their bases is A. The work done by gravity in equalizing the levels when the two vessels are connected. हमारे पास दो वेसल्स थे, मैं एक ही दिखा रहा हूं, पर वो दोनों अलग अलग थे पहले, so you have two vessels, which were separately initially, but I am showing them same, पहले में लिक्विड का लेवल यहाँ तक था, दूसरे में यहाँ तक था, मान लो H1 एंड H2, अब हमने इन दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर दिया है,
हमने इन दोनों को कर दिया कनेक्ट। ओके, और कनेक्ट करने के बाद इन दोनों वेसल्स में लेवल हो गया सेम, राइट। काम करता हूं मैं, इन दोनों में लेवल सेम दिखा देते हैं। सो आफ्टर कनेक्टिंग द लेवल्स इन द टू इज exactly the same, h. What is the work done by the gravity? क्योंकि gravity ने किया होगा, है ना? The work done by the gravity in equalizing these two levels. How will you solve this question? Work done, work energy theorem, of course. So work done will be equal to what? Change in potential energy. Excellent. मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, गुड। व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ आके गाड़ी अटक जाती है। इसके लिए पहले पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, बट potential energy of a liquid column is important है। Potential energy of a liquid column is by formula mgh by 2। ये by 2 क्यों आया? That is assignment for you to read। h by 2 क्यों आया? That is an assignment की बोलने की जरूरत नहीं थी, वैसे मुझे जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया समथिंग। वेट समथिंग टू रिलेट विथ दिस। मैंने क्या बोला था? एवरेज। तो बॉटम पे वेसल के बॉटम पे हाइट इज 0। वेसल जहां तक भरा गया है हाइट इज h। व्हाट इज एवरेज? h by 2। यहां तो बाहर नहीं निकाल रहे हो ना आप? हाँ, तो इन सच केसेस फॉर लिक्विड कॉलम इट इज mgh by 2। व्हाट इज m? वो तो अभी आपने बताया था। व्हाट इज m? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी into gh by 2। what is volume? एरिया into लेंथ, मतलब हाइट। यहाँ पे एरिया into हाइट रो जी एच बाई 2। मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वेयर, राइट, गुड। what will be initial potential energy? Potential energy of vessel 1 plus potential energy of vessel 2। For vessel 1 it will be half a rho g h1 square, क्योंकि एरिया सेम था पर हाइट्स आर डिफरेंट, है ना? कंबाइन करने से पहले, कंटेनर्स को ज्वाइन करने से पहले। सेकंड क्या था? हाफ ए रो जी एच टू स्क्वायर, राइट? समझे यहां तक? गुड। तो I can take out half a rho g common, h1 square plus h2 square। What will be final potential energy? वापस से potential energy of 1 final। तो ये जो हमने पहले लिखा, we are talking about potential energy of 1 initial and second के लिए भी initial। Now here we are writing first के लिए final plus second के लिए भी final। Clear? What is final height? a रो g h का स्क्वायर फाइनल, पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में भी सेम था क्या? हाफ a रो g h स्क्वायर। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 a रो g h स्क्वायर। what will be delta? what will be work done? work done was delta pe, and that is final minus initial।
राइट। और फाइनल है हमारे पास a रो g h स्क्वायर माइनस इनिशियल है 1/2 a रो g h1 plus h2 square. But do you remember surface tension little bit? थोड़ा बहुत। उसमें एक चीज थी, आप n नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कंबाइन करके सिंगल ड्रॉप बनाते हो, बराबर। तब एक पॉइंट आपको क्लासेस में या कॉलेज में कहीं पे भी या खुद ने भी पढ़ना चाहिए, ये पता होना चाहिए किसका सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स का कि सिंगल ड्रॉप का? सर एन का। वेरी गुड, एन का ज्यादा होता है। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? टेंशन इनटू सरफेस एरिया, बराबर। जिसका एरिया ज्यादा उसका सरफेस एनर्जी ज्यादा। सरफेस एनर्जी क्या था? इट वाज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। याद है क्या वो आप बोलते हो कि एक लेयर है, वो लेयर इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा है। उस सरफेस लेयर में हमने ए बी और सी मॉलिक्यूल लिया था। ए था वेल इनसाइड, याद करो, करना पड़ेगा। एक वेसल था हमारे पास, वेसल से एकदम अंदर जहां पे लिक्विड है वहां पे एक मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल। फिर बोला हमने ए मॉलिक्यूल के सर्फ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, याद है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? नहीं, ओके। तो I sorry for diverting from this particular topic, but it is important. The idea is this: हमारे पास एक वेसल है जो यहाँ तक भरा हुआ है, ये एक फिल्म है। इस फिल्म को बोलते हैं सरफेस लेयर। इस लेयर का थिकनेस होता है रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब क्या होता है? कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज, बराबर। करेक्ट। अब मॉलिक्यूलर रेंज को हमने यहाँ पे थिकनेस रख के, सो द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, बराबर। इस लेयर को बोलते हैं सरफेस लेयर। अब हमने मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर पे एक मॉलिक्यूल बैठा है, उसका ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब उस स्पीयर के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आया तो इट विल बी इन्फ्लुएंस, मतलब इट विल बी अट्रैक्टेड, बराबर। उसके बाहर रहा तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, नो अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर? गुड। तो हम लोग बोलते हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पे लिया ए, इट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, राइट। तो अभी ये ए मॉलिक्यूल के लिए हर एक डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक है तो यहाँ भी एक है, मतलब हर एक डायरेक्शन से इक्वल कोहेसिव फोर्स है। मतलब नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0, राइट। फिर आप बोलते हो कि एक काम करो, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लो बी, इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका मैक्सिमम पार्ट इनसाइड वाटर है और थोड़ा सा पार्ट इन एयर है। एयर का डेंसिटी होता है कम। इसका मतलब इस पर्टिकुलर molecule which was sitting here at B, overall it is pushed downwards, net force is in downward direction। फिर यहाँ पे आप लेते हो तीसरा मॉलिक्यूल C, जिसका हाफ पार्ट इनसाइड वाटर और हाफ पार्ट इनसाइड एयर, बट अगेन एयर का डेंसिटी कम है वाटर से, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर आप ऐसा बोलते हो कि जो सरफेस लेयर है, ये जो लेयर मैंने ड्रॉ किया है, ये लेयर, इस लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब पे एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है। और तो फिर मॉलिक्यूल वहां क्यों रुकेगा? वो नीचे जाएगा ना, नेट फोर्स है तो। फिर ऐसा तो सब मॉलिक्यूल जाना चाहिए, मतलब लेयर तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। सो देयर विल बी नो वन। इट्स लाइक अ क्लासरूम with 100 sitting capacity and there are 50 students. No one wants to sit in the front desk.
सबको पीछे बैठना होता है, द सेम थिंग। तो सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, सब मॉलिक्यूल नीचे आ गए तो लेयर बचेगा नहीं, पर लेयर तो होता है वाटर का, नहीं तो फिर कभी दिखेगा नहीं, लेयर है ही नहीं वहां पे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी। बट कैन थिंग्स गो against gravity on its own? No, work has to be done. That work done, dw, is given by tension into surface area that is stored in the form of potential energy, right? तो ये क्यों लिया मैंने इतना, क्योंकि मैंने पूछा था n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होके सिंगल ड्रॉप बन गया, तो किसका ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब वर्क डन ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका, n number of drop will have more surface, hence more surface और potential energy. good, यहाँ तक समझा? तो आपको ये समझेगा कि हम जो इक्वेशंस लिख रहे थे वहां पे you have to write down one small correction you have to do, and that is change in potential energy will be potential energy initial, क्योंकि there were two separate vessels, मतलब सरफेस एनर्जी ज्यादा था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, दो का अलग अलग का जब कंबाइन करोगे तो कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ इस इक्वेशन, ये इक्वेशन में इनिशियल क्यों लिखा, इसके लिए मैंने आपको पूरा सरफेस टेंशन का बेसिक्स बता दिया। तो यहाँ पे भी आपको करेक्शन करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल गेट नेगेटिव आंसर। अब करो, इनिशियल पोटेंशियल कितना था, हाफ ए रो जी एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर माइनस हाफ ए रो जी एच स्क्वायर, सिंप्लीफाई, हाफ ए रो जी कॉमन, h1 square plus h2 square minus h square, something like this. good, right? ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है तो कहां से लाएंगे, because this is what we have to do. yes, what was h, आप लोगों ने बताया, what was h, what was h, h1 plus h2 by 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप फिर, तो लेंदी क्वेश्चन तो है, हाफ ए रो जी h1 plus h2 minus this, you have to solve, इसको सॉल्व करो, करना पड़ेगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद what you should get is, if I am not wrong, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 दिख रहा है मुझे, yes, नीचे 4 दिख रहा है ना, मैं सॉल्व करने के बाद 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। कहाँ हाफ नहीं है, हाँ तो निकाल दो फिर वहां से, हटा दो, यहाँ से निकल गया, तो फिर अभी यहाँ पे भी एक करेक्शन होगा, you will not have half common, you will have half over here, बाद में कॉमन ले लेंगे, वो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो बाद में कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये h1 प्लस h2 बाई 2 का होल स्क्वायर है, वो तुम कर सकते हो, in any case it's basically part of calculation, so you have to solve this, तो ये आप करेक्शन कर लो, it's simple, right? good, so calculations you have to complete, but this is by logic, कैलकुलेशन कर लो एंड यू शुड गेट ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेक्टेड आंसर ये है और आएगा भी, समझा क्वेश्चन? हाँ, तो क्वेश्चन में ज्यादा था नहीं, सिर्फ था वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो लिक्विड कॉलम का, ये फॉर्मूला है, mgh/2, m is volume into density into g into h/2, and then just go on solving. good, the mass of a bucket containing water is 10 kilogram. What is the work done in pulling up the bucket from a well of depth 10 meter if water is pouring out at a uniform rate from a hole in it
and there's a loss of 2 kilogram of water from it while it reaches the top. हमारे पास एक बकेट है, the mass of bucket containing water, मतलब विथ वाटर की बात चल रही है यहाँ पे, उसको हम वेल से ऊपर निकाल रहे हैं, and while pulling it out up, there's a hole at the bottom of the bucket due to which there is loss in the water. 10 kg का ऊपर आते आते 8 ही रह गया, right? So what is work done in doing this process? So again, you know final value, you know initial value. What will you do? Take averages. मतलब ये मैं वेल दिखा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये एंड पॉइंट है बी, इन बिटवीन यहाँ से वाटर लीक हो रहा है, ओके? तो आई विल से वेट ऑफ bucket plus water at A, initial weight, is equal to mg. M was 10 kilogram, G is 10, मतलब 100 न्यूटन initial point पे. At final point it is how much? 8. तो ये याद रखना, मास एट ए, मास एट बी इंटू जी, क्योंकि 2 किलोग्राम लॉस हुआ मतलब 8 इंटू 10 दैट इज 80 न्यूटन, राइट? करेक्ट. व्हाट इज वर्क डन? Force into displacement. What force you will be taking? Average of weight at A and weight at B, right? Clear? पक्का? तो फिर अगर क्लियर है तो हो गया. What is average of 180? 180 का एवरेज कितना? 90. So what is average force? 90. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर, तो 900 of joule is work done, average work done to take this bucket out from a well, right? Clear? Good. If we throw a ball upwards with a velocity of 4 meter per second, at what height its kinetic energy reduces to half of the initial value? कैसे सॉल्व करोगे? इजी है ये, इजी है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रहा है, राइट? एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस? बॉल को ऊपर फेंका, मास चेंज होता है क्या? क्या चेंज होता है? वेलोसिटी, मतलब k is proportional to v square. Then at what height the value of velocity becomes, value of kinetic energy becomes half of initial. तो k2 by k1 is 1 by 2 ऐसा बोला है, बराबर? करेक्ट. बट k2 by k1 is what? v2 by v1 का स्क्वायर, राइट? मतलब v2 is what? v1 by √2. तो जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हुआ उस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 by √2 हुआ. गुड. ओके, हाइट कैसे निकालते हो? इफ यू नो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी g, 1D motion v square equal to u square plus 2as, v2 square equal to v1 square minus 2gh. ओके, v2 स्क्वायर तो यहीं से है v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh, बराबर? तो 2gh इज इक्वल टू, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, तो 2gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 1 माइनस हाफ इज हाफ, h इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 4g. What was v1 square? 4 meter per second. 4 square is
16, 4 into 10, 1 जा 4 जा 0.4 मीटर, 0.4 नहीं 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 नहीं, कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लमेटिक चीज हुआ, बट इट्स रेक्टिफाइबल, रेक्टिफाइबल है वो। टू टू कैंसिल 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 कैंसिल, ये तो करेक्ट है बिकॉज दिस इज राइट। V1 फाइनल इज दिस करेक्ट हाफ, ये करेक्ट है। H इज V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4G, नीचे 40 आएगा, V1 स्क्वायर 4 दिया है, V1 स्क्वायर 4 16, 16/40.4 आना चाहिए। Why it is like this? You should be getting 0.4 under any case, so I will write none because it is none. Okay, क्योंकि 0.4 ही आना चाहिए, cannot be 4 मीटर, right? Clear? 0.4. So option number D, none of these, right? 14 है ना, ऑप्शन डी है, करेक्ट है, none, right? Clear? So